Hello guys, one more time welcome back to you all. Myself from Gujarat, and finally we are back into our channel AI Foundation. So dear students, as you all can see, today we are going to start another topic, which is our control and coordination. Here in this video we are going to see the last part of control and coordination. Approximately in this video we are going to deal with only animal control and coordination, because how plants coordinate we discussed in last video of biology class 10th. So in this video we are going to see the control and coordination in animals. And guys, as I told you in last video, there are two types of animals. We know that in class 9th we studied diversity. There we saw how animals are further classified based on the presence of chordata. And you know, based on the vertebrae, they are classified into two: simple animals and highly modified animals. So as we start the control and coordination in animals, the first and the most basic question arises when we are going to discuss about the simple animals or complex animals. So in this video we are going to see only complex animals, or especially I can tell you about human beings. So first of all we are going to see the organs or the systems which are involved in the control and coordination in human beings. So as I told you, there are two basic systems involved in control and coordination in almost all animals. First one I told you about nervous system. Am I right? Nervous system. And second one I told you endocrine system. Endocrine system. Dear guys, in simple animals, there we see only nervous system, not the endocrine system, involved in coordination. But whenever we go and deal with complex animals, or we say human beings, at that time we consider this both system for the specific coordination. So first of all we are going to start the nervous system, human nervous system, in detail. Before starting this video, let me tell you certain more basic things concerned with our nervous system. There we will start with four terms. First term we can say receptor. Then we will see effectors. Then we will see types of nerves. Types of nerves. As we all can see guys, in nervous system, by its name only we can judge. Here we are going to study about nerves in detail. And in your basic classes you might have studied there are three types of nerves, or we can say as a whole there are three types of nerves. First one we studied there about arteries, then veins, and last one capillaries. But here in this video we will see the specific type of nerve, or we can say, as we all know guys, a group of cells makes tissue, then further a group of tissues makes organ, then organ system, and finally organism. So here we are discussing about organ system, nervous system. So first we will see through the basic level or cellular level. So first we will start with our nerve cell, which is also known as neuron. So now we are going to start this video, but before that I will tell you the meanings of these three terms. Another term I will tell you later. So let's start with receptor. What do you mean by receptor? Okay guys, so first we are going to define receptor. So let's start. Actually guys, we know that there are 5 sense organs in our body:
sense organs. There are 5 basic sense organs. First one, our eye, ear, tongue, nose and skin. So dear students, receptors are a specialized cells, or we can say they are tissues who all are involved or who all are responsible for having certain sensation through a specific organs, or we can say अपने मन से इसको बना सकते हैं कि receptors are a group of cells having a specific property of transmitting signals, or they are the first pathway where sensations are felt through any sense organ. अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स ये आइदर सेल्स होते हैं या फिर बोलिए वैसे टिश्यूज जो कि किसी भी बेसिक या स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी सेंसेशन को फेल्ट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कराने में। सो हमेशा याद रखिएगा, दीज रिसेप्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स। आई में भी रिसेप्टर होता है, ईयर में भी रिसेप्टर होता है, टंग में भी रिसेप्टर होता है, नोज में भी रिसेप्टर होता है एंड स्किन में भी रिसेप्टर होता है। क्लियर हो गया रिसेप्टर क्या है? आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेप्टर होते क्या है। अगर नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोल देता हूं। मान लीजिए हमारा आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन ये सभी ऑर्गन्स हैं एंड ऑर्गन्स बनता है हमारे टिश्यूज एंड सेल्स से मिलकर। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं, ये बेसिक वाले रिसेप्टर्स, ये सेल्स बोलिए या फिर टिश्यू बोलिए, ये वैसे टिश्यूज होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस के प्रति ठीक है, जो हमारा स्टिमुलस होता है किसी भी स्टिमुलस के प्रति या किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो सबसे पहले वर्क करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? बोलिए, यही रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया हो कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं। एक बात और मैं अभी यहां पे आपको क्लियर करता हूं, थोड़ा सा होल्ड करिएगा 1 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा ड्रिंक ले लेता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर से हम लोग को पता चल गया कि रिसेप्टर्स किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में ये सेंसिटिव होते हैं और ये पहले होते हैं, यानी पहले जो रिस्पॉन्ड करता है वे ये रिसेप्टर्स होते हैं एंड फर्दर ये रिसेप्टर्स इन्फॉर्म करते हैं इन ऑर्गन्स को। एंड हमें पता है कि इन नर्वस सिस्टम द बेसिक फंक्शन इन्वॉल्व्ड बाय नर्वस सिस्टम इज टू ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बेसिकली जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वे थ्रू दी सेंस ऑर्गन्स यहां पर क्या होते हैं? ब्रेवल नर्व्स होते हैं एंड यहां से नर्व से हुए बेसिकली हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की तरफ या उसके पास हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कराते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू सी द different types of receptors available in different sense organs. The first receptor is eye. So here we see photoreceptors. Photo means light. So those receptors which are responsible for the sensation of light as a stimulus, they are termed as photoreceptors. Then ear, they are termed as phonoreceptors. Phono. Then tongue, olfactory रिसेप्टर्स। व्हाट अबाउट नोज, व्हाट अबाउट स्किन? क्या हम लोग सही चल रहे हैं, क्या हम लोग गलत चल रहे हैं? ये तो आप लोग को कमेंट करना है। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। अब बात आती है कि ये फैक्ट्री अगर टंग का होता है भैया तो नोज का क्या होता है? अब हम लोग को पता है कि स्किन का होता है थर्मो। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे सही या गलत अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ओ रिसेप्टर ना जी, रिसेप्टर। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टंग का ऑलोफैक्टरी होता है, तो फिर नोज का क्या होता है? अब नोज का क्या होता है यही तो हम लोग को सोचना है। अब देखिएगा यहां पे आपको भी ये कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं यहां पे पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है? ओलाफैक्टरी जो होता है ना, ये नोज के लिए यूज होता है। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ओलाफैक्टरी एंड ये जो टंग वाला है ये बहुत कंफ्यूजन लाता है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा कि आपको लगे कि यही ये होता है। ओलाफैक्टरी का मतलब क्या होता है? स्मेल। एंड टंग का वर्क होता है टेस्ट। क्या स्मेल एंड टेस्ट हमारा इक्वल है?
बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों को कंफ्यूजन मत खाइएगा। अब याद रखिएगा इसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है हमारा गैस्टोरी रिसेप्टर। ठीक है, क्या? गैस्टोरी रिसेप्टर। समझ में आ गया आपको? अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम लिख दूं। देखिए अब इसका गैस्टोरी रिसेप्टर नाम क्यों पड़ा? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गैस्टोरी रिसेप्टर, ओके। देखिएगा आपको याद होगा जब हम लोग माउथ के बारे में पढ़ते थे बचपन में, तो वहां पे जब हम लोग स्टार्ट करते थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से स्टार्ट करते थे? माउथ से स्टार्ट करते थे। माउथ के इंटरनल वाले पार्ट में जाते थे तो वहां पे हम लोग को टंग मिलता था। अब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं यस नो टंग एंड द स्किन। तो गैस्टरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गैस्टरी का मतलब होता है टेस्ट। ये आपका सैनोनिम से, इसीलिए इसका नाम जो है वो गैस्टरी रिसेप्टर पड़ा। ये एक सैनोनिम है जो कि फुल्ली बेस्ड होता है टेस्ट के ऊपर। क्लियर हो गए आप लोग? तो ये तो बेसिक बातें थी अबाउट रिसेप्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डील अबाउट इफेक्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर हो गया, आप इफेक्टर के ऊपर आते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग। अब हम लोग डील करने वाले हैं इफेक्टर्स के बारे में। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इफेक्टर्स क्या होते हैं। सो डियर गाइस, जो रिसेप्टर्स के अपोजिट तरफ वर्क करते हैं उन्हीं को इफेक्टर्स कहते हैं। So by receptors we got that there are certain cells which are involved for the first sensation of these all basic sense organs. तो सेंस ऑर्गन्स के पास जब हमारा सेंसेशन आता है तो वे लोग ट्रांसमिट कर देते हैं टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड फर्दर दे गो टू वन ऑर्डर और वी कैन से they receive one signal from either our brain or spinal cord, and those tissues, those cells which are basically involved in the response, they are termed as effectors. रिसेप्टर्स का मतलब कि पहले जिसके ऊपर स्टिमुलस का वाला इफेक्ट पड़ा और उसके बाद जो इफेक्टर्स होते हैं वे सो आउट करते हैं जो हमारा उनको ऑर्डर मिला है। तो आपको इफेक्टर्स कैसे लिखना है? So they are the first, or they are those cells or group of cells which are involved in the response given to the particular stimulus. ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि रिसेप्टर इफेक्टर्स में अंतर क्या है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो मेरे दोस्त का बर्थडे है और मेरे दोस्त ने मेरे को एक 40 रुपए का डेयरी मिल्क गिफ्ट में दिया। मेरा दोस्त का बर्थडे और मुझे दे रहा है 40 रुपए का। अब मेरे को खोल के दे रहा है, भाई लो मैं तुम्हें आज खिलाने वाला। सो एट दैट टाइम व्हाट आई विल गेट, बेसिकली हमारे मुंह में तो सलीवा आएगा ही आएगा, क्योंकि मुंह से मेरा पानी आने लगा भाई, अब मेरे को डेयरी मिल्क मिलने वाला है। तो एट दैट टाइम क्या हुआ, हमारे आईज के थ्रू जज किया गया कि हमको कोई दोस्त जो है वो देने वाला है डेयरी मिल्क। सो यहाँ पे आई जो था वो मेरा रिसेप्टर की तरह वर्क करेगा कि इफेक्टर की तरह? रिसेप्टर की तरह। एंड आई में जो सेल्स होंगे वे रिसेप्टर की तरह वर्क करेंगे, एंड फाइनली हमारा ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा तो मेरा ब्रेन कहेगा भाई अब तो तुम्हें मिलने वाला है। तो मिलने वाला है तो मेरा मन खुश हो जाएगा, एंड उसी कंडीशन में मेरे माउथ से सलीवा सीक्रेट हो जाएगा, एंड वही सलीवा मेरे को लगेगा क्या, हाँ क्या मिलने वाला है मेरे को। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड वन, आवर टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स के टाइप जानने से पहले एक बार नर्व का स्ट्रक्चर देख लिया जाए। तो नर्व का स्ट्रक्चर देखने से पहले एक बार बेसिकली बता देता हूं। हम लोग यहां पर जो नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे वे 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है मेरा सेरी ब्रेनियल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स, सॉरी। ठीक है, सेकेंड होता है मेरा स्पाइनल नर्व्स, ये होता है क्रेनियल नर्व। ठीक है, आपको मैं गलत क्यों बताऊं? जो ब्रेन वाले नर्व्स होते हैं या दोज नर्व्स विच आर इन्वॉल्व फॉर द सेंसिएशन और द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू, मोस्टली दे आर लोकेटेड नियर अबाउट द ब्रेन्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स। क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व्स। सेकेंड हो गया स्पाइनल नर्व्स, एंड लास्ट वाला होता है विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स। Now we are going to see
ये तो क्लियर हो गया, क्रेनियल, स्पाइनल। ये विसरल क्या होता है? क्लास 9th ऑल्सो यू माइट हैव स्टडीड दिस टर्म विसरल। ये जो होता है ना, ये मोस्टली ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को लोकेट किया जाता है। विसरल ऑर्गन्स मीन्स दोज ऑर्गन्स लाइक आवर हार्ट, आवर लंग्स, मीन्स दो डीप ऑर्गन्स जो होते हैं ना, बिग बिग ऑर्गन्स, उन्हीं को लोकेट करने के लिए हम लोग विसरल ऑर्गन्स बोल देते हैं कई बार। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी थ्रू द डायग्राम द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नर्व सेल और न्यूरॉन। ठीक है, उसी के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फर्दर दीज थ्री नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड आवर visceral nerves, they are further classified into two. First one sensory nerves and second one motor nerves. Now I will tell you, and even another one also is there, relay nerves. ये तीनों के बारे में आप पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं न्यूरॉन को। Okay dear guys, so we are going to start neuron in detail. So first I am going to write here nerve cell. Nerve cell or neuron. With the diagram we will deal with it. So पहले मैं बता देता हूं कि nerve cell is the longest cell in our human body. ठीक है, and guys we have studied in class 9 that all the shapes and sizes of different cells are totally based on their functions. And guys, we know that our body is made of so many different types of cells. All those cells are having their own shape based on their functions. And हमें पता है कि nerve cell का function होता है, they have to transmit messages from one region to another, and because of that they are having rope like structure और rope like shape. तो चलिए स्टार्ट करते हैं nerve cell को। थोड़ा डायग्राम मैं आपको सिंपल बताऊंगा, तो सिंपल में थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। ओके, ये वाला रीजन आपको और थोड़ा पतला मिलता है। ठीक है, नाउ ये वाला रीजन ऐसे ऐसे जाके अब फर्दर डिवाइडेड होते जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये वाला जो रीजन होता है इसमें आपको कुछ ऐसे 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 एंड ऐसे, यहां पे बीच में थोड़ा सा ब्रोकन गैप होता है। ठीक है, ओके, चलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। एंड फर्दर हियर वी सी गाइस कि ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे यहां से ऐसे ऐसे बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करो। मेन जो है ये हमारा इस साइड का भी हम लोग डील करने वाले हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना जी, वेट गाइस। सो फाइनली ओके, नाउ वी कैन सी। सो दीज ऑल आर नोन एज, नाम तो सब आपको पता ही होगा, बिकॉज इन क्लास 9th also where we studied. I will draw the diagram, then I will tell you about their functions and their naming. Okay, let's start. So dear guys, these all are known as dendrites. Dendrites. Every specific regions has their own function. This is known as nucleus. Actually guys, the nerve cell are further divided, or they have only three basic regions. First one is known as cell body or cytone. Cell body or cytone. Second one axon. And what is the third one? बताइए। हमारा थर्ड वन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेंड्राइट्स। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं रीजन्स हमारे नर्व सेल में। फर्स्ट वन सेल बॉडी, अप टू दिस रीजन, these all region are included in cell body. Okay,
Here we can see they possesses their own nucleus, their own mitochondria, and even these clumps of ribosomes and RER are available over here. These all are known as Nissls granule. Okay, Nissls granules. Here we can see, guys, these small tiny finger like projections are termed as dendrites. The main function involved by dendrites is to take signals or is to receive signals from another companion nerve cell. Here we can see, guys, ये वाला जो रीजन होते हैं इन्हें कहते हैं हम लोग स्वान सेल. ठीक है, these all regions are termed as स्वान सेल्स. ये सभी स्वान सेल्स हैं. इनके पास भी अपना एक छोटा सा होता है न्यूक्लियस. और देखते हैं तो ये वाला जो कवर रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं माइलिन सीथ. माइलिन सीथ. एंड दीज माइलिन सीथ आर मेड ऑफ फैट एंड प्रोटीन. ठीक है, फैट्स एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. एक्चुअली गाइस, जब ये फैट एंड प्रोटीन से बने हुए हैं तो इनका मेन बेसिक रीजन होता है या बेसिक फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द एक्सॉन. एंड ये जो लंबा सा ये जो वायर लाइक रीजन है इसे कहते हैं एक्सॉन. द मेन फंक्शन कंसर्न्ड विथ एक्सॉन इज टू ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम डेंड्राइट्स टू साइनोप्टिक नर्व्स. ये सभी रीजन्स को हम लोग बोलते हैं साइनोप्टिक नर्व्स. नर्व्स और ब्यूटोन्स. ठीक है, ब्यूटोन्स, ये साइनोप्टिक नर्व्स और ब्यूटोन्स कहलाए जाते हैं. So basically, guys, the most important thing that we have to consider regarded with nerve cell is this, कि these cells do not possess their own centrioles. Centrioles, ये बहुत important है. ठीक है, as they do not have their own centrioles, so they do not or they cannot what? They cannot further regenerate their cells. या फिर मैं बोलूं तो आपको पता है कि सेल डिवीजन जो होता है वे हमारा नर्व सेल में नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर. यही केस आप लोग पढ़े होंगे कि बचपन में अगर किसी का हाथ का नस कट जाती है तो उसको कहा जाता है कि ये बचपन में या कहिए कि फाइनली कह देता है डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम कि इसका बचने का चांस 99.9% नहीं है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं. और जब ये सेंट्रियोल्स नहीं होता है तो आप कभी एक बार नोटिस करेगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा ध्यान से. यहाँ पे ये छोटा सा मेरे को स्क्रैच दिख रहा है आपको. ठीक है, इस स्क्रैच के ऊपर अभी मैं कुछ भी चीज करता हूँ तो मुझे सेंसेशन नहीं फील होती है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो नर्व था मेरा अवेलेबल वो नर्व डैमेज हो चुका है. एंड जब नर्व डैमेज हो जाएगा तो वे कभी भी आपस में या अपने आप को सेल डिवीजन प्रोसेस को नहीं करते हैं. मीन दैट दे कांट रिप्लिकेट देमसेल्व्स. ठीक है, ओके गाइस. Now we are going to see about what? About the different types of nerves. ठीक है, हम लोग ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, न्यूरॉन के फंक्शंस पढ़ लिए. अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग about the different types of nerves present in our body. ठीक है, Are you having any doubt? वीडियो क्वालिटी बढ़िया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. As I told you, there are 3 types of nerves. First, cranial nerves, spinal nerves and visceral nerves. These 3 nerves are further classified into 2. First one, our sensory nerves. 3 होते हैं, कई बार 2 भी बोला जाता है. ठीक है, आपको तीनों बता देता हूं. सेकेंड होता है हमारा मोटो नर्व्स एंड थर्ड वन आवर, बताइए थर्ड वन कौन सा है? सेंसरी हो गया, मोटर हो गया, थर्ड है आपका रिले नर्व्स. सेंसरी नर्व्स, these nerves are helpful in transmitting the messages through receptors. ठीक है, याद रखिएगा ये सब. रिसेप्टर्स के आसपास रहने वाले नर्व्स सेंसरी नर्व्स होते हैं. मोटो नर्व्स इफेक्टर के आसपास रहते हैं, इफेक्टर्स को सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं. एंड रिले नर्व्स हमारे स्पाइनल कोड एंड ब्रेन में होते हैं. ठीक है, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन.
Okay, now we are going to see about the nervous system in detail. नर्वस सिस्टम का दो प्रकार होता है, दो टाइप होता है, ठीक है। कौन कौन, अभी मैं आपको बोर्ड पर क्लियर से बताता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर नर्वस सिस्टम इन डिटेल, एक इंफॉर्मेशन और है जो आपको अभी शेयर करना है मेरे को। नर्वस सिस्टम, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस नर्वस सिस्टम, हैव यू एवर इमेजिन्ड हाउ actually messages are transferred from one neuron to another? If till now, if you have not imagined, then let's start to imagine with us. अभी चलो शुरू करते हैं इमेजिन करना और देखते हैं कि कैसे एक्चुअली किस फंडा के ऊपर हमारा सिग्नल्स एक सेल से, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में ट्रांसमिट होते हैं। होता क्या एक्चुअली, ये समझाता हूं आपको। चलिए, टू थिंग्स यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट थिंग, कोई भी हमारा, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं एक ही बार बोलूंगा, ठीक है। कोई भी हमारा देखने में लग रहा है बॉल एंड सॉक जॉइंट ना, ये बॉल एंड सॉक जॉइंट नहीं है, बल्कि ये है मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन। क्या है देखिएगा ध्यान से, मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन ऑफ impulses. Now we are going to see the mechanism involved in the propagation of impulses. ये क्या है ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा ब्यूटॉन्स, ठीक है। ये है हमारा डेंड्राइट्स। आपको याद होगा व्हेन आई वाज टेलिंग यू ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, देयर आई टोल्ड यू डेंड्राइट्स रिसीव्स मैसेजेस एज लाइक, और वी कैन से दे आर लोकेटेड नियर बाय अबाउट, किसके आसपास होता है, रिसेप्टर के इफेक्टर। याद होगा रिसेप्टर मैंने बोला था। तो सिमिलरली ये वाला जो रीजन होता है ना, यही मेरा क्या होता है बताइए, आया समझ में। ये वाला जो रीजन है भाई, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन मेरा क्या है, कौन सा रीजन है, ये आ रहा है कुछ दिमाग में। ये वाला रीजन मेरा डेंड्राइट्स है, यानी ये मैसेज एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को पास करता है, और ये लेता कहां से है, तो एक बगल वाले यानी कंपेनियन नर्व सेल के एंडिंग से या फिर ब्यूटोन से। एंड ये वाला रीजन मेरा है एक्सॉन। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, सपोज वी टच्ड वन हॉट प्लेट। मेरी घर में मम्मी ने बहुत मस्त आज समोसा बनाया था, रियली बोल रहा हूं, आज मेरे घर पे समोसा बना था। तो मैं गया, भाई मम्मी आज क्या बनाई हो, मैंने देखा समोसे बने हुए। अब समोसे इतने गर्म थे, मेरे को क्या पता, अभी मम्मी ने बना कर रखा था, मैं चुपके से ऐसे हाथ डाला, बाप रे इतने गर्म था कि देखो मेरा हाथ जल गया। अब ये हुआ कैसे, जैसे मैंने समोसे को टच किया, फटाक से एकदम ऐसे, देखो मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। अभी मैं आया, समोसा रखा हुआ है, ऐसे मैंने टच किया, फटाक से मेरे को एकदम सिग्नल लगा कि बहुत गर्म है, मैंने हाथ हटा लिया। अब ये हुआ कैसे, सबसे पहले मैंने जब समोसे को टच किया तो वहां पे मेरा थर्मो रिसेप्टर था। क्या था, थर्मो रिसेप्टर था। बोले तो मेरा स्किन था वहां पे कांटेक्ट में। स्किन के पास क्या होता है, देखिए कोई भी ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली अभी स्किन के बारे में बात कर रहा हूं, तो स्किन के जब कांटेक्ट में हीट आया तो वहां पर से एक प्रोटीन या फिर आप समझिए तो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज होते हैं, ठीक है। ये सब्सटेंस विच इज आल्सो नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस इज सेक्रेटेड बाय द रिसेप्टर विच इज इन कांटेक्ट विथ द पार्टिकुलर सिचुएशन या स्टिमुलस। तो यहां पर से यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारा इस एक्सॉन के थ्रू एक सेल्स, एक जो सेंसरी नर्व वहां पे था उसके थ्रू यहाँ पे आया। एंड हमेशा याद रखिएगा ये एक्सेप्शन केस होता है कि अगर किसी भी जंक्शन को फॉर्म करना है
या फिर मैं बोलूं कि सपोज वी आर टोल्ड टू मेक वन connectors, so at least both the surfaces are required to be in contact with each other. लाइट तो है नहीं कि वैक्यूम में भी चलेगा, ये बात होती है आपको समझाने के लिए। अगर आपको कोई कनेक्ट करने का बात करे, कोई भी बोले आपको, बच्चा या बड़ा बूढ़ा बड़ा कोई भी बोले घर पे कि आप कनेक्ट करें, तो आपको पता है ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के लिए दो सरफेसेस का कॉन्टैक्ट में होना बहुत जरूरी है। बट ये एक्सेप्शनल केस होता है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक गैप रहता है, एंड गैप ये माइनर गैप होता है, बट ये गैप काफी बड़ा एसेंशियल होता है हमारे बायोलॉजी में, ठीक है। एंड इस गैप का एक अपना नेम है, दिस माइनर गैप इज और दिस माइनर जंक्शन इज कॉल्ड एज साइनेप्स, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं? साइनेप्स। ये ध्यान से रखिएगा, याद आप, सिनेप्स या साइनेप्स, सिनेप्स या साइनेप्स। अब बेसिकली देखिए यहां तक मेरा ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस आ गया एंड इसने अपना ACH को सिक्रेट कर दिया। एंड ये जो टीनी फॉर्म्स है ये क्या होते हैं ना, जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये फाइनली मेरे हमारे कौन से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर से ये सिक्रेट करते हैं ये सभी सब्सटेंसेस को बाहर में। एंड यहाँ पे ये माइनर गैप जो होता है ये फटाक से इसे कैच कर लेता है एंड फाइनली ये वाले जो ACH थे हमारे या न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस थे ये इंटर कर जाते हैं हमारे फर्दर कंपेनियन डेंड्राइट्स में। एंड फाइनली when they enters there they generate another impulse which goes to our brain and so on to our spinal cord, and यही full mechanism को हम लोग कहते हैं synaptic process, the whole mechanism involved in the transmission of signals from one nerve cell to its companion nerve cell is known as synaptic process। क्या होता है? synaptic process, ठीक है। Are you having any doubt? According to me, you might not be having any more doubt. Okay, dear students. So here we discussed about the mechanism which is totally involved in nervous मेरा erase हो गया ना, कोई बात नहीं है, फिर से लिख लेंगे क्योंकि here we have to deal these all topics in detail। चलिए अब एक टॉपिक जो हमारा अभी बचा हुआ है, अब हम लोग को नर्वस सिस्टम को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ओके, so can I ask you one basic question from you all? When I was discussing you all with life process, there I told you one thing. What? Means I told you there are so many glands present in our body. So can you all reply me? What do you mean by glands? How many glands are there? Which are the two basic types of glands? कमेंट करके बता देना क्योंकि ये सब तो डिस्कस होंगे, बट ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर से। We are discussing here nervous system in detail. Nervous system. Dear guys, nervous system is further classified into two. First one, CNS. CNS stands for central nervous system, and this one peripheral nervous system. Peripheral nervous system are further classified into two: auto and voluntary. Auto, or we can say here involuntary, and this one voluntary. Here in involuntary nervous system there we see certain conditions or certain functions which are not in our control. They themselves get adapted to the particular responses. And आपको पता है what do you mean by coordination? Coordination is the systematic response provided by the effectors or by the brain and spinal cord. तो यहां पर से दो होते हैं, पहला हो गया ऑटोनॉमिक या फिर बोलिए इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड वन आपका जो आपके कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिटेल्स। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, let me tell you about something about central nervous system and peripheral nervous system. By its name what we gets in our mind. Central का मतलब क्या होता है? अगर central का आपको बेसिक लाइफ में बोला जाता है तो we consider as we know that guys, एक स्टेट लेवल होता है, एक सेंट्रल लेवल होता है। तो सेंट्रल लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डर, या बोलिए एल्डर फादर, जो भी बोलिए,
तो एल्डर लेवल ये हमारा यंगर लेवल हो गया। तो यहाँ पर भी वही चीज होता है, ठीक है। हियर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर वी इन्वॉल्व बोथ आवर फादर एंड ग्रैंडफादर। स्पाइनल कोड भी है एंड हमारा बहुत बड़ा मेन जो है ब्रेन भी है, ठीक है। बट जो पेरिफेरल होता है ना, यहाँ पे ओनली नर्व्स होते हैं। अब बोलिएगा नर्वस सिस्टम को तो हम पढ़ चुके हैं, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या रोल है समझा देता हूँ। देखिए, in case of peripheral nervous system, suppose we got any stimulus, our receptors responded, and without reaching the impulses to our brain and spinal cord, उसके जाने से पहले ही हमारा रिस्पॉन्ड हो चुका रहता है। तो वैसे कंडीशन में हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्क करते हैं। मीन्स दैट दे डोंट थिंक और दे थिंक दैट देयर इज नो यूज ऑफ इन्फॉर्मिंग दीज टू इडियट्स and they themselves react according to the condition. So in that time we can say our PNS has worked well. So PNS have both two conditions. PNS has two condition or two further types. First one auto या फिर बोले तो involuntary and second one voluntary nervous system. तो अब by its name only पता चल गया हो कि involuntary क्या होता है, voluntary क्या होता है। चलिए अब आते हैं, पहले जो हम लोग पढ़ लेते हैं वो PNS पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि PNS पढ़ना हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, बिकॉज अगर हम लोग पढ़ेंगे CNS के बारे में तो वहां पे आपको बेसिकली टाइम लग जाता है। एंड ये वीडियो का ड्यूरेशन आई थिंक आई होप अबाउट 30 मिनट्स इट माइट हैव रीच्ड, माय गॉड। सो हाउ वी कैन डील गाइस, यू ओनली टेल मी, बिकॉज इफ आई मेक वीडियोस more than 30 minutes duration, then you might be having boring tension, my god क्या लेके आ गया। So in order to remove your this intention, I am dropping my video over here. So I hope you might got certain things, certain benefits from this video. And if you are having more doubt, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक तो डिस्कस हो नहीं पाया इस वीडियो में, अब जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पे मैं फटाफट से डायग्राम भी लाऊंगा ब्रेन का, क्योंकि मेरे को एक ब्रेन का टिपिकल डायग्राम भी बनाना है। So for that purpose, I am dropping in this video here only. Sorry for leaving you all right now. Meet you all in next video guys. Have a good day to you all. Best of luck for your board examination. And please ask me your doubts in the comment box section. Okay, good luck. Bye.